السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ٹی وی، میں ہوں زینب رائے اور میں ہوں معظم اصغر۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں بلیٹن کے آغاز میں۔ سب سے پہلے آپ کو اپڈیٹ کریں، توہین الیکشن کمیشن کیس میں پی ٹی آئی رہنماؤں کی درخواستوں پر فیصلہ سنا دیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن کیسز میں حاضری سے استثناء کی درخواست مسترد کر دی گئی ہے۔ توہین الیکشن کمیشن کیس میں پی ٹی آئی رہنماؤں کی درخواستوں پر فیصلہ سنا دیا گیا۔ الیکشن کمیشن کیسز میں حاضری سے استثناء کی درخواست مسترد کر دی گئی۔ عمران خان، اسد عمر اور فواز چودھری کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے ہیں۔ تینوں رہنماؤں کو 50,000 روپے کے مچلکے جمع کروانے کی ہدایت بھی کی گئی ہے۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات بتائیں گے نمائندہ کیپٹل ٹی وی شاکر عباسی۔ جی شاکر، اپڈیٹ کیجیے، پی ٹی آئی رہنماؤں کی درخواستوں پر فیصلہ سامنے آ گیا ہے، کیا تفصیلات ہیں؟ کیس میں آج جو محفوظ فیصلہ تھا اس پر الیکشن کمیشن کے 4 رکنی بینچ نے یہ فیصلہ سنایا ہے اور فواد چودھری، اسد عمر اور عمران خان کی حاضری سے استثناء کی درخواست مسترد کر دی ہے۔ اور الیکشن کمیشن نے توہین الیکشن کمیشن کیس میں عمران خان، اسد عمر اور فواد چودھری کے قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہیں۔ اس کے علاوہ ان کو 50,000 روپے کے مچلکے جمع کرانے کی ہدایت کی تھی۔ گزشتہ سماعت پر الیکشن کمیشن نے فیصلہ محفوظ کیا تھا اور آج الیکشن کمیشن نے فیصلہ محفوظ سنا دیا۔ عمران خان مختلف جلسوں میں اور فواد چودھری مختلف ٹاکس میں، اسی طرح اسد عمر نے بھی مختلف جگہوں پر الیکشن کمیشن پر تنقید کی تھی اور جس کے نتیجے میں الیکشن کمیشن نے اس حوالے سے خود نوٹس جو ہے لیا تھا اور تینوں رہنماؤں کو نوٹس جاری کیے تھے۔ اس کی ابتدائی سماعت ہوئی، اس کے بعد پی ٹی آئی نے اس پر جو ہے وہ ان کے دائرہ کار کو چیلنج کیا اور پھر یہ معاملہ راولپنڈی جو ہے وہ بینچ ہے لاہور ہائی کورٹ کا، وہاں پہ گیا۔ وہاں پر کچھ عرصہ پی ٹی آئی کو اسٹے ملا، پھر یہ معاملہ واپس سپریم کورٹ آیا اور سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو کہا تھا کہ وہ اس معاملے کو آگے پروسیڈ کر سکتے ہیں۔ تو گزشتہ سماعت پر فواد چودھری کے جو بھائی ہیں اور پی ٹی آئی کے وکیل ہیں فیصل چودھری، انہوں نے ان سے حاضری کی استثناء کی جو ہے وہ کہا تھا کہ ان تینوں کو حاضری سے استثناء کی جو ہے وہ اجازت دی جائے، کیونکہ عمران خان جو ہے ان پہ حملہ ہوا ہے، وہ سفر نہیں کر سکتے، اس لیے وہ نہیں آ سکتے۔ ساتھ ساتھ فواد چودھری کا ان کا کہنا تھا کہ فواد چودھری جو ہے بیمار ہیں۔ اسی طرح اسد عمر کا بھی انہوں نے جو ہے وہ لکھ کے دیا تھا، لیکن الیکشن کمیشن نے گزشتہ سماعت پر دلائل سن کے فیصلہ محفوظ کیا تھا اور اب الیکشن کمیشن نے تینوں رہنماؤں کی جو حاضری سے استثناء کی درخواست تھی وہ مسترد کر دی اور توہین الیکشن کمیشن کیس میں ان تینوں کے قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دی اور 50,000 روپے مچلکے جمع کرانے کی بھی ہدایت کی ہے۔ جی، کیس کی آئندہ جو سماعت ہے وہ 17 جنوری تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ بہت شکریہ شاکر عباسی تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ خبر دیں آپ کو، پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کا قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کرنے کا فیصلہ ہائی کورٹ کے فیصلے کی توہین ہے۔ کیس کی تاریخ 17 جنوری تھی، جس کو رولز کے خلاف آج مقرر کر کے فیصلہ سنا دیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات لیں گے نمائندہ کیپٹل ٹی وی ناصر بٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی ناصر۔ دیکھیے، الیکشن کمیشن کی جانب سے سابق وزیر اعظم عمران خان، فواد چودھری، اسد عمر کے خلاف جو وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے ہیں اس پر تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری نے سخت رد عمل کا جو ہے اظہار کیا۔ ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جو باقاعدہ طور پر جو یہ جاری کیے گئے ہیں ضمانت اور جو وارنٹ جاری کیے گئے ہیں یہ باقاعدہ طور پر قابل ضمانت جو وارنٹ ہیں جاری کرنے کے جو فیصلہ ہے ہائی کورٹ کے فیصلے کی یہ توہین ہے اور کیس کی جو تاریخ ہے 17 جنوری تھی، جس کو رولز کے خلاف آج مقرر کر کے جو فیصلہ ہے دیا گیا ہے۔ فواد چودھری نے کہا ہے کہ یہ الیکشن کمیشن کے انہوں نے جو ممبران ہیں اور ایک اور جانبدار جو فیصلہ ہے ان کی جانب سے کیا گیا ہے، اس فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ میں توہین عدالت کا جو مقدمہ ہے وہ بھی ان کی جانب سے دائر کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ اچھا ناصر بٹ، یہ بھی بتائیے گا کہ مرکزی سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف الیکشن کمیشن کیس کے فیصلے پر یہ کہتے ہیں کہ عمران خان، فواد چودھری اور میرے الیکشن کمیشن نے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں، الیکشن کمیشن اپنا کام کرنے کے بجائے ان کاموں میں لگے ہوئے ہیں، اس حوالے سے بھی بتائیے گا۔ دیکھیے، اسد عمر کا بھی یقینی طور پہ نام شامل ہے ان تمام تر اراکین میں جن کے خلاف جو وارنٹ گرفتاری ہیں جاری کیے گئے ہیں۔ ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن عمران خان، فواد چودھری اور میرے جو وارنٹ ہیں گرفتاری جو جاری کیے ہیں اور اپنا الیکشن کروانے کا جو کام کرنے کے بجائے الیکشن کمیشن جو ہے ان کاموں میں لگا ہوا ہے اور اسلام آباد بلدیاتی انتخاب نہ کروا کر یہ خود توہین عدالت کے مرتکب ہوئے ہیں اور ان کی جانب سے باقاعدہ طور پر اس فیصلے کی مذمت بھی کی گئی ہے۔ جی، فیصلے کی مذمت کی گئی ہے۔ بہت شکریہ ناصر بٹ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ ترجمان پنجاب حکومت مسرت جمشید چیمہ کی جانب سے کیپٹل ٹی وی سے خصوصی گفتگو کی گئی ہے۔ کہا الیکشن کمیشن کا اقدام قابل مذمت ہے۔ الیکشن کمیشن یوسف رضا گیلانی کے بیٹے کے خلاف کیس کو کیوں نہیں سن رہا؟ الیکشن کمیشن کا اقدام قابل مذمت ہے۔
इलेक्शन कमीशन यूसुफ रजा गिलानी के बेटे के खिलाफ केस को क्यों नहीं सुन रहा? इलेक्शन कमीशन का फैसला इंतहाई अफसोसनाक है। तर्जुमान पंजाब हुकूमत की जानिब से यह भी कहा गया कि इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में तौहीन अदालत का मुकदमा दर्ज करेंगे। मुसर्रत जमशेद चीमा ने ये भी कहा कि इस वक्त मुज़हिका खेज हालात हैं। उनकी जानिब से कहा गया कि मुल्क में इस वक्त आइन और कानून की कोई भी चीज़ नज़र नहीं आ रही है। उन्होंने ये भी कहा है कैपिटल टीवी से गुफ्तगू के दौरान आपको बता रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन का इक़दाम काबिल मज़म्मत है। उनकी जानिब से मज़ीद क्या कहा गया आप भी सुनिए। अफसोसनाक और काबिल मज़म्मत, और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि मैंने बारहा पहले भी मीडिया के तवस्सुस से इलेक्शन कमीशन से सवाल किया है कि यूसुफ रजा गिलानी के बेटे ने पब्लिकली ही हो गया ना, क्योंकि मीडिया के अंदर भी उनकी फुटेज आई, मीडिया ने उसके ऊपर रिपोर्ट भी किया, लेकिन आज तक उसके ऊपर कोई फैसला नहीं है। जिस तरह तोशा खाना से 3 गाड़ियां लेना, नवाज शरीफ का, उसका अपना जरदारी का, फिर शहबाज शरीफ का, उसके ऊपर भी माशाल्लाह से महफूज करके बैठे हुए हैं फैसले। और एक तरफ आलम यह है कि वारंट गिरफ्तारी और इस तरह की मज़हका खेज सिचुएशन है इस मुल्क के अंदर। आइन और कानून नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई, और एक विंग की शक्ल इख्तियार, अगर इस मुल्क के इदारे जिन्होंने, जो रेगुलेटरी बॉडीज है, अगर उन्होंने किसी मखसूस तबके के लिए या किसी खास जमात के लिए विंग का एक मंजर पेश कर रहे हैं, तो इससे तो ये काम नहीं है। बहरहाल एक और अफसोसनाक तरीन दिन, एक और अफसोसनाक तरीन फैसला। PTI के सीनियर रहनुमा फैयाजुल हसन चौहान की जानिब से भी कहा गया कि इस केस में रहनुमाओं ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर रखा है। अदालत ने इस केस में इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई में रोका हुआ था। उनकी जानिब से मजीद क्या कहा गया आप भी सुनिए। इस्लाम बुनियादी तौर पे ये मैं समझता हूँ कि ये बैड इंटेंशन के ऊपर मबनी डिसीजन है, क्योंकि इसी केस के अंदर तीनों अफराद, इमरान खान साहब, फवाद चौधरी, असद उमर साहब, इन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आइन के आर्टिकल 199 के तहत जो है वो स्टे लिया हुआ था। और आइन का आर्टिकल 199 जो है ना, हाई कोर्ट की जुरिसडिक्शंस को डिफाइन करता है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस आर्टिकल 199 के तहत इस केस में मना किया हुआ था इलेक्शन कमीशन को कि आपने किसी किस्म की कोई कार्रवाई, मतलब कोई गिरफ्तारी की या वारंट की या इस किस्म की कोई एक्टिविटी इनके खिलाफ, एग्रीड पार्टी के खिलाफ नहीं करनी। पहला तो ये इसकी वायलेशन इन्होंने की इलेक्शन कमीशन ने। दूसरी बैड इंटेंशन ये है कि 17 जनवरी की डेट इसमें दी हुई थी, इन्होंने रातों रात जनाब इसको आज की तारीख अनाउंस करके और जनाब फैसला दे दिया। तो मैं समझता हूँ कि अब आइन के आर्टिकल 204 के तहत इस पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हम इसके खिलाफ जाएंगे, और उसमें ये तौहीन अदालत के जनाब हवाले से हम इसको केस दायर करेंगे, और बाकी इसके अलावा इसकी कोई अहमियत और कोई हैसियत नहीं। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि इलेक्शन कमीशन रेगुलर PTI के खिलाफ, इमरान खान साहब के खिलाफ जिस अंदाज से चीज़ों को परफॉर्म कर रहा है वो क्वेश्चनेबल है। इसके ऊपर जब सवाल उठाओ तो वो जनाब कभी नोटिस ले लेते हैं। अभी 2 दिन पहले मैंने यूनियन काउंसिल्स की जो हदबंदियाँ इन्होंने की, उस पर मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ कहा, तो जनाब कल सारे टीवी चैनल्स में इन्होंने चलाया जी कि इलेक्शन कमीशन ने नोटिस ले लिया जनाब फयाज चौहान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और भाई हमने गलत कहा, पूरे पंजाब के अंदर अजीबो गरीब किस्म की हद। नाज़रीन, फयाजुल हसन चौहान की कैपिटल टीवी से गुफ्तगू आपने सुनी। अभी आपको बताएं कि ATC इस्लामाबाद इलेक्शन कमीशन फैसले के खिलाफ एहतजाज और कार्य सरकार में मुदाखलत का ये केस है। अदालत ने इमरान खान की अबूरी जमानत में 31 जनवरी तक तोसी कर दी है। इमरान खान के मेडिकल रिपोर्ट्स अदालत में पेश भी कर दी गई है। ATC इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन फैसले के खिलाफ एहतजाज और कार्य सरकार में मुदाखलत केस की समाअत हुई। अदालत ने इमरान खान की अबूरी जमानत में 31 जनवरी तक तोसी कर दी गई है। इमरान खान के वकील बाबर आवान ATC इस्लामाबाद में पेश हुए। इमरान खान की मेडिकल रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी गई। इमरान खान की तिब्बी बुनियादों पर हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई है। तौहीन इलेक्शन कमीशन के नोटिस के खिलाफ असद उमर की दरख्वास्त पर समाअत हुई। सिंध हाई कोर्ट ने फौरी समाअत की दरख्वास्त पर नोटिस जारी कर दिए। दरख्वास्त समाअत के लिए 25 जनवरी को मुकर्रर करने की हिदायत भी की गई है। तौहीन इलेक्शन कमीशन के नोटिस के खिलाफ असद उमर की दरख्वास्त पर समाअत हुई। सिंध हाई कोर्ट ने फौरी समाअत की दरख्वास्त पर नोटिस जारी कर दिए। दरख्वास्त समाअत के लिए 25 जनवरी को मुकर्रर करने की हिदायत की गई है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, आप यहाँ क्यों आए हैं? अदालत की जानिब से इस्तफसार किया गया।
आपने फौरी समाअत की दरख्वास्त क्यों दायर की है? चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद इलेक्शन कमीशन हमारे खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। वकील की जानिब से दलाइल में ये कहा गया। उनकी जानिब से कहा गया कि खदशा है कि इलेक्शन कमीशन फर्द जुर्म आयद करके कार्रवाई शुरू कर देगा। अपडेट कर रहे हैं आपको इस हवाले से कि तौहीन इलेक्शन कमीशन के नोटिस के खिलाफ असद उमर की दरख्वास्त की समाअत हुई है। मजीद तफसीलात बताएंगे नुमाइंदा कैपिटल टीवी अब्दुल कादिर। जी अब्दुल कादिर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, सिंध हाई कोर्ट में तौहीन इलेक्शन कमीशन के नोटिस के खिलाफ पीटीआई रहनुमा असद उमर की दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने असद उमर के वकील से मुकालमा करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, आप यहाँ क्यों आए हो? जिस पर चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि आपने फौरी समाअत की दरख्वास्त क्यों दायर की है? वकील ने अदालत को बताया कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद इलेक्शन कमीशन हमारे खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। खदशा है कि इलेक्शन कमीशन फर्द जुर्म आयद करके कार्रवाई शुरू कर देगा। अदालत ने फौरी समाअत की दरख्वास्त पर नोटिस जारी कर दिए। दरख्वास्त समाअत के लिए 25 जनवरी को मुकर्रर करने की हिदायत जारी कर दी। जी बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर तफसीलात से आगाह करने के लिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा मुत्तहिदा अरब अमारात दौरे का शेड्यूल तब्दील कर दिया गया है। सिफारती ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा मुत्तहिदा अरब अमारात 12 जनवरी को होगा। आपको अपडेट कर रहे हैं, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा मुत्तहिदा अरब अमारात दौरे का शेड्यूल तब्दील कर दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा मुत्तहिदा अरब अमारात 12 जनवरी को होगा। सिफारती ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म जनेवा से आज रात वतन वापस पहुँचेंगे। वज़ीर-ए-आज़म 12 जनवरी को एक रोज़ा दौरे पर मुत्तहिदा अरब अमारात जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म के हमरा वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी होंगे। सिफारती ज़राए के मुताबिक मुल्क की मुआशी सूरत-ए-हाल के तनाजुर में वज़ीर-ए-आज़म का दौरा अहम नौइयत का हामिल है। ज़राए का ये कहना है। अपडेट कर रहे हैं आपको, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा मुत्तहिदा अरब इमारात दौरे का शेड्यूल तब्दील कर दिया गया है। सिफारती ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा मुत्तहिदा अरब इमारात 12 जनवरी को होगा। आपको आगाह करें हैं, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा मुत्तहिदा अरब इमारात का जो शेड्यूल है तब्दील कर दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा मुत्तहिदा अरब इमारात अब 12 जनवरी को होगा। वज़ीर-ए-आज़म जनेवा से आज रात वतन वापस पहुँचेंगे और 12 जनवरी को एक रोज़ा दौरे पर मुत्तहिदा अरब इमारात जाएंगे। सिफारती ज़राए का ये भी कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म के हमरा वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी होंगे और मुआशी सूरत-ए-हाल के तनाजुर में वज़ीर-ए-आज़म का ये दौरा बहुत ही अहम नौइयत का हामिल है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दौरा मुत्तहिदा अरब अमारात का शेड्यूल तब्दील कर दिया गया है। मज़ीद तफसीलात लेंगे नुमाइंदा कैपिटल टीवी शाकिर अब्बासी से। जी शाकिर। देखिए, ये वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इम्पोर्टेंट दौरा जो है वो यूएई का है और इस दौरे में उनके हमरा वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी होंगे और पाकिस्तान की माशी जो सूरत हाल है उसके तनाज़ुर में वज़ीर-ए-आज़म का ये दौरा है इंतहाई अहमियत का हामिल है। और आपके इल्म में होगा कि आर्मी चीफ पहले ही मुत्तहिदा अरब अमारात के जो हैं वो दौरे पर हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ वहाँ पर जो है मुल्क की माशी तनाज़ुर में जो है वो वहाँ पर अहम मामलात पर तबादला ख्याल करेंगे और यूएई के सदर शेख ज़ैद बिन नहान से भी मुलाकात करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाकिर अब्बासी, आपने अपडेट किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा मुत्तहिदा अरब अमारात का शेड्यूल तब्दील कर दिया गया है। सिफारती ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा 12 जनवरी को होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा मुत्तहिदा अरब अमारात का शेड्यूल तब्दील कर दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा मुत्तहिदा अरब अमारात 12 जनवरी को होगा। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात बताएंगे नुमाइंदा कैपिटल टीवी अनस मलिक। जी अनस, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी शुक्रिया। बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा मुत्तहिदा अरब इमारात का जो शेड्यूल है वो तब्दील कर दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 10 के बजाय अब 12 जनवरी को मुत्तहिदा अरब इमारात पहुंचेंगे, जहां पे वो इमाराती लीडरशिप से मुलाकात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के हमरा एक आला अफसराई वक्त भी होगा। वज़ीर-ए-आज़म आज रात गए जो है वो जनीवा से वतन वापस पहुंचेंगे और उसके बाद वो काबीना को अपने हालिया दौरा जनीवा में जो कामयाब दौरा जनीवा रहा है उसके मुतालिक उनको एतमाद मिलेंगे। जिसके बाद 12 तारीख को गोया जुमेरात के रोज वज़ीर-ए-आज़म एक रोज़ा दौरे के ऊपर जो है वो मुत्तहिदा अरब इमारात रवाना होंगे। वज़ीर-ए-आज़म के हमरा वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार और वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी होंगे, ऐसा सिफारती ज़राए का बताना है। मौजूदा जो माशी सूरत हाल है उसके तनाजुर में वज़ीर-ए-आज़म का दौरा मुत्तहिदा अरब इमारात जो है इंतहाई अहमियत का हामिल है, जिसमें गुमान ये जाहिर किया जा रहा है कि डिफर्ड पेमेंट से मुतालिक ऑयल जो तेल की जो डिफर्ड पेमेंट है उससे मुतालिक भी कोई प्रोग्रेस जो है वो हो सकती है। जी बहुत शुक्रिया अनस मलिक, आप हमें अपडेट करे थे।
पंजाब असम्बली में अता तारड़ को रोकने की कोशिश की गई। नून लीगी रहनुमा अता तारड़ गुस्से में आ गए। अता तारड़ हिफाजती रेंजर्स के साथ पंजाब असम्बली में दाखिल हुए। आपको बता रहे हैं कि पंजाब असम्बली अता तारड़ को रोकने की कोशिश करती रही। नून लीगी रहनुमा अता तारड़ गुस्से में आ गए। क्या हुआ था भाई? कहते हैं एंट्री बैन है, तो मैंने कहा कि गुजरात की यूनियन काउंसिल नहीं है, तुम्हारा बाप भी मुझे नहीं रोक सकता। जिंदाबाद आई जी। तो ये किसके हुक्म के ऊपर हुआ है सारा कुछ? कह रहे जी आज वफाकी वजीर कोई नहीं आएगा। अच्छा, उनकी भी एंट्री उन्होंने बैन की। असल में थोड़ा डर गए हैं, वोट है नहीं चोरी पर। आप थोड़ा पीछे हो जाए यार। तो राणा साहब आएंगे या नहीं? राणा साहब आएंगे, बिल्कुल आएंगे। तो इस पे ही बात करेंगे। नाज़रीन, आपने देखा कि अता तारड़ आपे से बाहर हो गए गुस्से में और अमले को धमकियां देने लगे। पंजाब असम्बली में अता तारड़ को रोकने की कोशिश की गई, मगर नून लीगी रहनुमा गुस्से में आ गए और अमले को धमकियां देने लगे। अच्छा, उनकी भी एंट्री उन्होंने बैन की। असल में थोड़ा डर गए हैं, वोट है नहीं चोरी पर। राणा साहब आएंगे, बिल्कुल आएंगे। तो इस पे ही बात करेंगे। क्या हुआ था भाई? कहते हैं एंट्री बैन है, तो मैंने कहा कि गुजरात की यूनियन काउंसिल नहीं है, तुम्हारा बाप भी मुझे नहीं रोक सकता। क्या हुआ था भाई? कहते हैं एंट्री बैन है, तो मैंने कहा कि गुजरात की यूनियन काउंसिल नहीं है, तुम्हारा बाप भी मुझे नहीं रोक सकता। जिंदाबाद आई जी। क्या हुआ था भाई? कहते हैं एंट्री बैन है, तो मैंने कहा कि गुजरात की यूनियन काउंसिल नहीं है, तुम्हारा बाप भी मुझे नहीं रोक सकता। जिंदाबाद आई जी। तो ये किसके हुक्म के ऊपर हुआ है सारा कुछ? कह रहे जी आज वफाकी वजीर कोई नहीं आएगा। अच्छा, उनकी भी एंट्री उन्होंने बैन की। असल में थोड़ा डर गए हैं, वोट है नहीं चोरी पर। आप थोड़ा पीछे हो जाए यार। तो राणा साहब आएंगे या नहीं? राणा साहब आएंगे, बिल्कुल आएंगे। तो इस पे ही बात करेंगे। क्या हुआ था भाई? कहते हैं एंट्री बैन है, तो मैंने कहा कि गुजरात की यूनियन काउंसिल नहीं है, तुम्हारा बाप भी मुझे नहीं रोक सकता। जिंदाबाद आई जी। अता तारड़ की गुफ्तगू आपने सुनी, जिस तरह के अल्फाज उनकी जानिब से इस्तेमाल किए गए। अमले को धमकियां देते रहे, उन्हें पंजाब असम्बली में जाने से रोका गया। तो उनका जवाब भी आपने सुन लिया जब कैपिटल टीवी के नुमाइंदे ने जब ये उनसे सवाल पूछा कि क्या हुआ, तो उनकी जानिब से जवाब दिया गया। दूसरी जानिब अता तारड़ दीगर रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। पंजाब असम्बली में अता तारड़ को रोकने की कोशिश की गई, जिससे अता तारड़ आपे से बाहर हो गए और अमले को धमकियां देते रहे। जब कैपिटल टीवी के नुमाइंदे की जानिब से उनसे सवाल किया गया कि क्या हुआ है, तो उनकी जानिब से नाजेबा अल्फाज का भी इस्तेमाल किया गया, जो हम अपने नाजरीन को सुनवा भी रहे हैं। अता तारड़ की जानिब से ये अल्फाज इस्तेमाल किए गए। क्या हुआ था भाई? कहते हैं एंट्री बैन है, तो मैंने कहा कि गुजरात की यूनियन काउंसिल नहीं है, तुम्हारा बाप भी मुझे नहीं रोक सकता। जिंदाबाद आई जी। तो ये किसके हुक्म के ऊपर हुआ है सारा कुछ? कह रहे जी आज वफाकी वजीर कोई नहीं आएगा। अच्छा, उनकी भी एंट्री उन्होंने बैन की। असल में थोड़ा डर गए हैं, वोट है नहीं चोरी पर। आप थोड़ा पीछे हो जाए यार। तो राणा साहब आएंगे या नहीं? राणा साहब आएंगे, बिल्कुल आएंगे। तो इस पे ही बात करेंगे। क्या हुआ था भाई? कहते हैं एंट्री बैन है, तो मैंने कहा कि गुजरात की यूनियन काउंसिल नहीं है, तुम्हारा बाप भी मुझे नहीं रोक सकता। जिंदाबाद आई जी। तो ये किसके हुक्म के ऊपर हुआ है सारा कुछ? कह रहे जी आज वफाकी वजीर कोई नहीं आएगा। अच्छा, उनकी भी एंट्री उन्होंने बैन की। असल में थोड़ा डर गए हैं, वोट है नहीं चोरी पर। आप थोड़ा पीछे हो जाए यार। मियां आमिर जमील हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात लेंगे। आमिर, बताइएगा ये क्या मामला है, क्यों अता तारड़ वहाँ आपे से बाहर हुए और अमले को धमकियां भी देते रहे? जी बिल्कुल मौजूद। हम इस वक्त जो सूरत हाल है, जैसा कि आपको पता है कि आज पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी है, मुस्लिम लीग नून की जानिब से बुलाया गया था। कल भी पार्लिमानी पार्टी का इजलास पंजाब असम्बली में हुआ था। तो इसी सिलसिले में जो है अता तारड़ की जब आप वो रेंजर की अपनी सिक्योरिटी के साथ यहाँ पर पहुंचे, तो उनको पंजाब असम्बली की सिक्योरिटी ने गेट पर रोका, जिसके बाद वो गुस्से में आ गए और उन्होंने उनके साथ हिफाजती रेंजर भी थे, उनकी गाड़ियों को दाखिला अंदर जो है पंजाब असम्बली का हदूद में दाखिल होने की इजाजत नहीं दी गई। उसके बाद उनकी गाड़ियाँ बाहर रोकी, जिसके बाद वो गुस्से में आते हुए बोलते हुए अंदर आ गए
है। उनका ये कहना था कि ये गुजरात की यूनियन काउंसिल नहीं है। तो अभी कुछ देर पहले भी ये अभी जो है इस वक्त मीडिया से बात भी कर रहे हैं ताड़ल, और उनका यही कहना है कि ये किसी की जागीर नहीं है, पंजाब असली ऐवान है, ऐवाम का ऐवान है और यहाँ पर किसी को रोका नहीं जा सकता। मेरे पास होता है, मैं वफाक में एक मशीर हूँ, तो मुझे इस तरह जी मियां मिर्जा इस हवाले से आपसे बात करेंगे। अभी हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ कैपिटल टीवी लाहौर शादाब रियाज ने। जी शादाब रियाज, बताइएगा कि ये जो है अभी अता तारड़ की जानिब से जो नाजेबा अल्फाज का चुनाव किया गया है पंजाब असम्बली के अहाते में, उन्होंने कहा कि मुझे किसी का बाप भी नहीं रोक सकता, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, अता तारड़ साहब वफाक के नुमाइंदे हैं और वफाक के नुमाइंदे की हैसियत से वो यहाँ आ रहे हैं, लेकिन उनकी जानिब से जो जुबान इस्तेमाल की गई, और इससे पहले भी आपको याद होगा कि उनकी तरफ से कुछ इशारे किए गए थे, असम्बली के अंदर ये मौजूद थे और उसको भी नापसंद किया गया। इस तरह की कोई भी अमल करने से पहले, हरकत करने से पहले मेरे ख्याल में हमारे जो भी ये लोग रहनुमा हैं, मुस्लिम लीग नून के हों या किसी भी जमात के, उनको एक चीज देखनी चाहिए कि टीवी चैनल्स पर और बाकी मीडिया के जरिए देखने वाले जो लोग हैं वो क्या तासुर लेते हैं। मतलब अजीब सी एक चीज है कि भाई अगर आपको रोका गया है तो उसके लिए कानून मौजूद है, आप अदालत से रुजू कर सकते हैं, आपके पास एक रेमेडी मौजूद है कि आप वहां पर रुजू करें और उनसे दरख्वास्त करें कि जी मुझे गैर कानूनी तौर पे रोका जा रहा है, और अगर कानूनी तौर पे रोका जा रहा है तो आप उस कानून को फॉलो करें। अब हमारे लीडर्स कानून खुद फॉलो नहीं करते और इस तरह की जुबान इस्तेमाल करते हैं, इस तरह के इशारे इस्तेमाल करते हैं, और बाद में फिर इल्जाम ये लगा दिया जाता है कि ये तो मेरे खिलाफ सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया, ये मुझे जो है मेरे खिलाफ गैर कानूनी तौर से ये अमल किया गया। लेकिन जो अमल उनकी तरफ से किया गया है, तारड़ साहब की तरफ से, किसी का बाप भी नहीं रोक सकता, फिर वो इशारे करना फजूल किस्म के, तो ये चीज तो समझ से बालातर है कि हमारी जो सियासतदान है ये लोगों को क्या मैसेज दे रहे हैं। जी ठीक है शादाब साहब, हमारे साथ ही आप मौजूद रहिएगा। आमिर जमील भी हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर, ये बताइएगा कि आमिर से पूछते हैं क्या वहाँ पर हुआ, पहले ये ऑडियो क्लिप जो वीडियो क्लिप सुन लेते हैं। क्या हुआ था भाई? कहते हैं एंट्री बैन है। मैंने कहा कि गुजरात की यूनियन काउंसिल नहीं है, तुम्हारा बाप भी मुझे नहीं रोक सकता। तो ये किसके हुक्म के ऊपर हुआ है सारा कुछ? कह रहे जी आज वफाकी वजीर कोई नहीं आएगा। अच्छा, उनकी भी एंट्री उन्होंने बैन की, असल में थोड़ा डर गए हैं, वोट है नहीं चोरी पे। आप थोड़ा पीछे हो जाए यार। तो राणा साहब आएंगे या नहीं? राणा साहब आएंगे, बिल्कुल आएंगे। इस पे आमिर आपकी तरफ आऊँगा, ये बताइएगा कि जिस तरह अताउल्लाह तारड़ जो हैं वो ये कह रहे हैं कि एंट्री बैन की गई है, इस हवाले से आपके पास क्या तफसीलात हैं? आज जो विफाकी वज़रा हैं उनकी एंट्री बैन है पंजाब असम्बली में? जी बिल्कुल, जो मेरी अभी कुछ देर पहले ताहिर सलील संधू जो मुस्लिम लीग के रहनुमा, उनसे भी बात हुई। उनका ये कहना था कि मैंने रात को जो सेक्रेटरी हैं पंजाब असम्बली के लक साहब, उनसे मेरी बात हुई। उनका कहा था कि जो अताउल्लाह तारड़ वो असम्बली पंजाब असम्बली में दाखिल नहीं हो सकेंगे, इस हवाले से मुझे इन्फॉर्म किया। लेकिन मैंने उनको इस हवाले से बताया कि मैं इस पर एक एप्लीकेशन देता हूँ, अगर अताउल्लाह तारड़ या राणा सनाउल्लाह या ख्वाजा साद रफीक को अगर एंट्री बैन की जाती है तो से अगर उनको कुछ होता है तो इसकी तमाम जिम्मेदारी इमरान खान और चौधरी परवेज़ इलाही पर होगी। लेकिन इस वक्त मौसम जो सूरत हाल दिखाई दे रही है, पंजाब असम्बली के अंदर में मौजूद है, लेकिन इन्होंने जो गेट्स हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए, किसी को अंदर और बाहर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही, क्योंकि जो अताउल्लाह तारड़ यहाँ पर पहुंचे तो उनकी गाड़ियों को भी अंदर दाखिल नहीं होने की इजाजत दी गई थी। उसके अलावा वो बोलते हुए जो है मौसम वो पंजाब असम्बली के हाथा में दाखिल हुए। लेकिन जैसा कि आज आपको पता है पार्लियामेंट्री पार्टी का भी इजलास है, अभी कुछ देर पहले मीडिया से बात की अताउल्लाह तारड़ ने, जो वफाक के इस वक्त मशीन है उनकी जानब से ये कहा गया है कि हमने कल भी जो पार्लियामेंट इजलास बहुत शुक्रिया मियां आमिर जमील, आप हमारे साथ मौजूद थे, हमें आगाह करे थे इस हवाले से। बहुत शुक्रिया शादाब रियाज, आप हमें आगाह करे थे। क्या हुआ था? कहते हैं एंट्री बैन है, तो मैंने कहा कि गुजरात की यूनियन काउंसिल नहीं है, तुम्हारा बाप भी मुझे नहीं रोक सकता। तो ये किसके हुक्म के ऊपर हुआ है सारा कुछ? कह रहे जी आज वफाकी वजीर कोई नहीं आएगा। अच्छा, उनकी भी एंट्री उन्होंने बैन की, असल में थोड़ा डर गए हैं, वोट है नहीं चोरी पे। आप थोड़ा पीछे हो जाए यार। तो राणा साहब आएंगे या नहीं? राणा साहब आएंगे, बिल्कुल आएंगे। इस पे ही बात करेंगे। क्या हुआ था भाई? कहते हैं एंट्री बैन है, तो मैंने कहा कि गुजरात की यूनियन काउंसिल नहीं है, तुम्हारा बाप भी मुझे नहीं रोक सकता। तो ये किसके हुक्म के ऊपर हुआ है सारा?